السلام علیکم. آج میں ارطغرل غازی کے 2 ایپیسوڈ کا ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 5 اور 6. تو دل تھام کے بیٹھیں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. ارطغرل غازی ایپیسوڈ 5 کی شروعات ہوتی ہے. سلمان شاہ اور کرتگلو گندگتو کے خیمے میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. پھر سلمان شاہ گندگتو سے پوچھتے ہیں کہ کیا سیکھا تم نے ہماری روایتوں سے. گندگتو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اگر میں سردار ہوتا اور کوئی ہمارے قبیلے پر حملہ کرتا تو میں ضرور سوچوں گا اس سزا کے بارے میں جو مجھے اپنے محافظوں کو دینی چاہیے. پھر سلمان شاہ کرتگلو سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے. کرتگلو جواب دیتے ہیں، سردار، میرا خیال ہے کہ سلمان شاہ کا کیا گیا ہر فیصلہ حق و جانب ہوتا ہے. اور سلمان شاہ گندگتو سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ایک دن تم سردار بنو گے، اس وقت اس کا صحیح فیصلہ کرنا، مگر ابھی اپنے دماغ کو فضول فکروں میں مت الجھاؤ. بس اپنے کام میں لگے رہنا اور اسے بہترین بنانے میں کوئی کمی مت چھوڑنا. پھر گندگتو پوچھتا ہے، کیسا کام بابا؟ سلمان شاہ جواب دیتے ہیں، کل سے شروع کرنا ہے. تم قبیلے سے تجارت کا سامان جمع کرو گے بیچنے کے لیے. 3 دن بعد قافلہ لے کے روانہ ہونا ہے تمہیں. اور پھر کرتگلو کہتا ہے کہ سردار، تجارت سے کیوں نہیں کرواتے یہ کام؟ کورا ٹائیگر کی نیت اچھی نہیں، وہ قافلے پر حملہ کروا سکتا ہے. دوسرے سین میں حلیمہ آئکس کی مدد کرتی ہے پردے کو کلر کو ڈارک کرنے کے لیے گوبر استعمال کرتے ہوئے. اور حلیمہ کہتی ہے، گوبر ان کپڑوں کو اچھے سے مضبوط کر دے گا اور ان پہ کوئی بھی رنگ چڑھ سکتا ہے. اور پھر وہاں سلجان خاتون آتی ہیں اور آئکس سے پوچھتی ہیں، کیا کر رہے ہو؟ آئکس جواب دیتی ہے کہ گوبر کے پانی سے گزارا ہے پردوں کو. اور سلجان خاتون کہتی ہیں کہ کیا بے وقوفی ہے، یہ ضرور حلیمہ نے کہا ہوگا. اور آئکس کہتی ہے کہ حائمہ خاتون سے اجازت لی تھی ہم نے. اور پھر سلجان خاتون نکچڑے لہجے کے ساتھ کہتی ہیں کہ اب یہی رہ گیا تھا، حائمہ خاتون کے ساتھ بھی تعلق بنانے لگ گئی ہے یہ لڑکی. اگلے سین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی اور ساتھ میں ابن العربی حلب پہنچتے ہیں اور ابن العربی کو اپنے راہ کی طرف چھوڑتے ہوئے العزیز کے محل کی طرف چلتے ہیں. دوسرے سین میں سلمان شاہ اپنے پیٹھ کے زخم کو لے کے بیٹھے اپنی زوجہ حائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ حلیمہ کے والد اگر تاجر نہ ہوتے تو میری عزت کا جنازہ نکل چکا ہوتا. اور پھر حائمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ کورا ٹائیگر کب تک اپنی بدماشی کرتا رہے گا. سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حلیمہ کے والد نعمان کورا ٹائیگر کے لیے کتنا اہم ہے، اس بات کا اندازہ اب ہوا. وہ ہر قیمت پہ اسے حاصل کرنا چاہے گا. بس اب ہمیں ارطغرل کا انتظار ہے کہ وہ جلد اچھی خبر لائے. جب تک ہم جنگ کی تیاری یہی کریں گے. پھر حائمہ خاتون حلیمہ کا بتاتی ہیں سلمان شاہ کو کہ حلیمہ کافی محنت کر رہی ہے پردوں کے کلر کو لے کے. سلمان شاہ کہتے ہیں کہ کامیابی ملی اس کو. حائمہ جواب دیتی ہیں، انشاءاللہ. پھر ارطغرل کی شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کی بات ہوتی ہے جس میں حائمہ خاتون کہتی ہیں، گوکچی بہت پیاری بچی ہے. گوکچی جو سلجان خاتون کی چھوٹی بہن ہے. اور اگلے سین میں سلجان خاتون گوکچی کو کہتی نظر آتی ہیں کہ تم نے ارطغرل سے شادی کرنی ہے، تمہیں صرف اسی کا سوچنا ہے. یاد رکھو، ہم نے اپنے بابا کا بدلہ بھی لینا ہے سلمان شاہ سے. تمہیں سمجھنا ہوگا سرداری ہمارا حق ہے. آگے دکھاتے ہیں کہ ارطغرل العزیز کے محل پہنچتا ہے اور وہاں اس کا کوئی پیچھا بھی کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ارطغرل محل کے اندر جاتے ہیں اور العزیز کا ایک آدمی دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ کیا چاہیے؟ اور ارطغرل جواب نہیں دیتے. پھر وہ آدمی کہتا ہے، خاموش کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ تو ارطغرل کہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں میں. اور وہ آدمی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، سن رہا ہوں میں، کہو کیا کہنا ہے. ارطغرل کہتے ہیں، میں کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہوں، زمین کا مطالبہ ہے. پھر وہ آدمی کہتا ہے، تمہیں زمین چاہیے، پر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اور وہ آدمی تھوڑا اکڑ کے کہتا ہے، ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تم ہم سے زمین کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟ ارطغرل کہتے ہیں، یہ لہجہ قبیلیوں کو زیب نہیں دیتا. اور وہ آدمی حیران ہو کے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ ارطغرل کہتے ہیں، آپ کی انگوٹھی سے اگر آپ نے اسی شاہی حیثیت سے پہنا ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا.
इस तरह कोई तीर अंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 बहादुर जंगजू मिलेंगे। ऐसे वफादार जंगजू हर महाज पे आपके साथ आगे खड़े होंगे। और वो आदमी कहता है, तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। और अपने सिपाहियों को कहता है कि ले जाओ इन्हें। अर्तुगरुल कहते हैं, जनाब बात सुने। और इतने में उस आदमी का सिपाही आके अर्तुगरुल को हाथ से पकड़ के धक्का देते हुए कहता है, बाहर जाओ। अर्तुगरुल को गुस्सा आ जाता है और अर्तुगरुल उस आदमी के 3 सिपाहियों को वहीं मार गिरा देते हैं। कुछ चंद मिनट और अर्तुगरुल कहता है, बदर में सिर्फ 313 थे। ये लड़ाई देख के हलब के अल अजीज मुतासिर होते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, और तालियां बजाते हुए कहते हैं, एक अरसे बाद महल में ऐसा नजारा देखने को मिला है। और अपने दूसरे साथियों को कहता है, तुमने देखा नासिर? और पूछता है, तुम कौन हो बताओ जरा। और कहते हैं कि खाने पे बात होती है, हम खाने पे आपका इंतजार करेंगे। अगले सीन में गुंदुकतू सारे कबीले की तजारती सामान इकट्ठा कर रहा होता है और सबसे दुआ की गुजारिश करता है। इसके बाद टाइटस अल अजीज के आदमी नासिर के साथ दिखता है और टाइटस ने अपने कुछ आदमी भेजे होते हैं अर्तुगरुल को मारने के लिए महल में, जिसमें नासिर ने इसका साथ दिया होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और उसके साथी हलब के खाने की तैयारी के लिए नहा रहे होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उनका सामान और हथियार गायब हो जाता है। और वहीं अर्तुगरुल आते हैं, कहते हैं क्या हुआ? और तुर्गुत कहते हैं कि भाई हमारे हथियार चोरी हो गए हैं। फिर अर्तुगरुल दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे अपने हथियार महफूज तरीके से रखे हैं अजनबी जगह पे। कहते हैं कि अजनबी जगह पे अपने सामान का खास ख्याल रखना चाहिए। और अगले सीन में खाने के एहतराम में सब आते हैं, अल अजीज और अर्तुगरुल सब बैठे खाने के लिए। वहीं टाइटस ने 2 आदमी भेजे होते हैं महल में। वो अर्तुगरुल के कमरे में बेहोशी की खुशबू वाली मोमबत्ती लगा के चले जाते हैं। वही खाने में गुफ्तगू चल रही होती है और अल अजीज का आदमी कहता है कि खुराक की कमी की वजह से तुम्हारा काई कबीला मुश्किल से 2-4 है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारे साथ नरमी परख रहे हैं। इसके अलावा कबीलों के आपस की लड़ाई भी बहुत बड़ा मसला है। अर्तुगरुल कहते हैं, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ मसले हैं ऐसे, लेकिन असल मसला जमीन का है। जरूरतें पूरी हो जाएं तो मसाइल कम हो जाते हैं। फिर अल अजीज का आदमी कहता है कि एक तरफ मंगोल, दूसरी तरफ सलेबी, हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो इन तमाम मुहावजों पर हमारा दिफा कर सके। अगर मुसलमान ऐसे ही आपस में खून खराबा करके खत्म हो रहे हैं तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? और अल अजीज कहते हैं, बिल्कुल इस आग को बुझाना लाजमी है। वहीं अर्तुगरुल कहते हैं, हमारी तलवारें इसके लिए हाजिर हैं, हमारी भी तरजीह यही है। हमें भी एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमें महफूज जगह पनाह करे। अल अजीज कहते हैं कि हम कैसे मुआहिदा कर सकते हैं तुमसे? अर्तुगरुल कहते हैं, सर्द मौसम में हरियाली वाले कुछ इलाका चाहिए। और अल अजीज कहते हैं, सिर्फ कुछ इलाका, वो इलाका कुछ दिनों में बंजर हो जाएगा, फिर तुम हमसे पूरी सल्तनत मांग लोगे। और अर्तुगरुल कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अल अजीज कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें पूरा हलब दे देता हूँ, तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। अर्तुगरुल बेहद एहतराम से कहते हैं कि मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता, आपने हमें अपना मेहमान बनाया, लेकिन मजबूरी है, भूखे नहीं मर सकते। और फिर अल अजीज कहता है कि मगर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं उन्हें दूर करने के लिए यहाँ हूँ। फिर अल अजीज अपने बंदों को बुलाता है अर्तुगरुल के साथियों के हथियारों के साथ जो चोरी हो गए थे। अल अजीज कहता है कि ये देखने के बाद हम तुम पे कैसे भरोसा कर लें जो खुद अपने हथियार नहीं संभाल सके। आप लोग जा सकते हैं, सफर से आए हैं, थक गए होंगे, जाके आराम करें, मैं अपने वजीरों से फैसला कर लूं, फिर आपको अपना फैसला सुनाता हूं। और अर्तुगरुल और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में सब अपने रूम में आराम और इबादत कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल अपने रूम में नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते हुए अचानक बेहोश हो जाता है। उस मोमबत्ती की खुशबू से जो टाइटस के आदमियों ने रखी होती है रूम में, साथ ही अर्तुगरुल को ख्वाब आता है कि वो एक कुएं के अंदर फंसे आग में जल रहे होते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और सीन वहीं से चलता है।
अर्तुगरुल बेहोश होकर बिस्तर पे गिर जाते हैं। वहीं इब्नुल अरबी अपने साथियों के साथ जो दुरूद पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, उनको ख्याल आता है कि अर्तुगरुल मुसीबत में है। इसके बाद वो अल्लाह की मदद पुकारते हैं और इतने में अर्तुगरुल के कमरे में बहुत तेज हवा चलती है, जिससे मोमबत्ती बुझ जाती है और अर्तुगरुल के कान में आवाज़ आती है, उठो मेरे बेटे। और अर्तुगरुल को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने 2 आदमी उसे मारने के लिए खड़े हैं। अर्तुगरुल उनसे लड़ता है, एक को मार देता है और दूसरा बाहर की तरफ भाग जाता है और नासिर के हाथ लगता है और नासिर उसको जानबूझ के मार देता है। जबकि पीछे से अर्तुगरुल कहते हैं कि मत मारना, लेकिन नासिर मार देता है कि कहीं ये टाइटस और नासिर का नाम ना बता दे। और अर्तुगरुल नासिर को पकड़ता है और कहते हैं कि मैंने मना किया था मारने से। उतने में अल अजीज आ जाते हैं, क्या हो रहा है, और बाकी साथी भी आ जाते। अर्तुगरुल कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से मैं अमीरुल अजीज, सिर्फ अपने हथियार की नहीं बल्कि अपने जानों की भी हिफाजत खुद करनी होगी। और फिर अल अजीज पूछते हैं नासिर से, कौन है ये जिसने हमला किया? नासिर जवाब देते हैं, सलेबी जासूस। अगले सीन में टाइटस गुस्से से शोर मचाता है कि मैं फिर नाकाम हो गया अर्तुगरुल को मारने में, और नासिर से मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ मुहाफिजे का। नासिर बताता है कि काई कबीले को जमीन दरकार कर दी है अल अजीज ने। टाइटस चालाक शक्ल बना के कहता है, ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। नासिर पूछता है, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। टाइटस जवाब देते हैं, जल्द ही समझ जाओगे, उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलेबी जहाज़ों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुगरुल और उसके कबीले को ख़त्म करने का। इसके बाद कुर्तुगलू नौमान साहब से कहते हैं कि मुझे हैरत है कि एक ताजिर को इतनी अच्छी तलवार चलाना आती है, बहुत बहादुरी से लड़े आप। नौमान साहब जवाब देते हैं, अगर मैं इतना अच्छा ताजिर होता तो इस तरह अपने बच्चों के साथ दर बदर नहीं होता, और जहाँ तक बात है तलवारबाजी की तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुर्तुगलू कहते हैं कि एहतियात करनी होगी आपको नौमान अफंदी, दुश्मन बहुत हैं आपके। और वहीं पीछे से अफसन पाशा आ जाता है और कुर्तुगलू उसे देख के कहता है, एक ताजिर और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही अच्छे तलवारबाज हैं, जचते हो तुम दोनों एक साथ। और चला जाता है। और फिर नौमान अफसन से कहता है कि कौरा टाइगर का जासूस है इस कबीले में, वो यकीनन यही आदमी है। अगले सीन में सलजान खातून अपने शौहर गुंदुक्तू के बालों में से एक छोटा बाल का हिस्सा काटती है और गुंदुक्तू फौरन उठ जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो, अल्लाह के कामों में दखल ना दो। और सलजान जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ खुशखबरी आ जाए और सब कुछ बदल जाए। वहीं गुंदुक्तू कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह ज़रूर हमारी सुनेगा। ये सब अल्लाह के हाथ में है, वो जैसा चाहे, हम सिर्फ सब्र और दुआ कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। दूसरे सीन में हलीमा पर्दों को गोबर के पानी से गुजार रही होती है। वहीं आइकस कहती है कि हलीमा खाने पे आ जाओ, और हलीमा आइकस के साथ जाती है। पीछे से सलजान आती है और गोबर के पानी में कुछ डाल देती है, जिसकी वजह से पर्दों का रंग खराब हो जाता है। और फिर दूसरे सीन में अर्तुगरुल अपने रूम में होता है, उसके साथी आते हैं और कहते हैं कि माफ़ कर दें हमें, हमने आपको बहुत शर्मिंदा किया है हलब में। अर्तुगरुल कहते हैं कि ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफ़ी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। और वहीं अल अजीज़ के आदमी आता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब की अल अजीज़ ने बुलाया है। अर्तुगरुल साहब को अल अजीज़ ने बुलाया है और अगले सीन में अर्तुगरुल जाते हैं अल अजीज़ के पास। वहाँ अल अजीज़ कहते हैं कि मैं कल रात होने वाली वाक़ये से माफ़ी चाहता हूँ, ये जिसकी भी साजिश थी हम उसे ढूंढ के पकड़ लेंगे, और मेरे मोहतरम चचा जान कहते हैं कि उसके मुताबिक उसे सज़ा देंगे। फिर अल अजीज़ चचा जान को कहते हैं कि हमारा फैसला बताओ अर्तुगरुल को, और चचा जान बताते हैं कि हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सारसत ज़मीन दी जाए, और ज़मीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। फिर नासिर हलब के नक्शे में वो ज़मीन दिखाता है जो सलेबी दुश्मनों के इलाके से काफ़ी करीब होता है। अर्तुगरुल कहते हैं कि जी हाँ, मालूम है मुझे, फिर तो शैतान को करीब से बिछाड़ने में मज़ा आएगा। दुश्मन का करीबी जो कन्ना रखता है, यही तो ज़िंदगी है। वहीं अल अजीज़
तालियां बजाते हुए कहता है कि चचा जान कहते हैं कि हम तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं, तुम्हें सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। और अर्तुगरुल कहते हैं कि दुश्मन की चिंता ना करें, वो अब हमारा मसला है। अगले सीन में हलीमा वापस आती है पर्दों को देखने और देखती है कि पर्दे सारे खराब हो गए हैं और समझ जाती है कि किसी ने किया है ये काम। और फिर हलीमा और आइकस कहती हैं कि हमें आज रात ही दोबारा पर्दों को रंग देना होगा, जो कि बहुत कम टाइम है इस काम के लिए। वहीं अर्तुगरुल अपने साथियों को ये खुशखबरी सुनाते हैं और अपनी नई सरजमीन देखने जाते हैं और वहाँ अपना परचम लगाते हैं। और अर्तुगरुल कहते हैं हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल ज़मीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी जो जालिम के खिलाफ उठेंगे और ये परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा, पहाड़ों और समंदरों तक पैगाम पहुँचाएगा। और फिर वहीं अर्तुगरुल एक सलेबी जासूस को पकड़ते हैं जिसे टाइटस ने भेजा होता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बताता वो जासूस जहर खा के मर जाता। फिर दूसरे सीन में गुंदुकतू निकलने की तैयारी में वालिदा से और बाकी कबीले वालों से मिलने के लिए खड़ा होता है। और वहीं हाइमा कहती है कि एक और सामान है, आइकस और हलीमा पर्दे ला रही हैं, फिर वो भी ले जाना। और वहीं हलीमा और आइकस पर्दे लाती हैं जो उन्होंने दोबारा पूरी रात मेहनत करके बनाए होते हैं। और हाइमा हलीमा को शाबाशी देती है और फिर सुलेमान शाह गुंदुकतू को रवाना करते हैं हलब की जानिब। वहीं काला तोयगर को मालूम चलता है कि गुंदुकतू तजारती सामान लेके हलब की तरफ निकला है और काला तोयगर उसे मारने के इरादे से निकलता है। और अगले सीन में काला तोयगर गुंदुकतू पे हमला करता है। गुंदुकतू काफी अच्छे से लड़ता है मगर काला तोयगर उसे कैदी बना लेता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।